So in this video, I will be explaining emitter bias configuration of BJT. So I've already drawn circuit for emitter bias configuration, and we can easily observe that the only difference between emitter bias configuration and fixed bias configuration is the additional emitter register that we have introduced in this configuration, that is RE. So what is the advantage of introduction of RE in the circuit? Due to the introduction of RE emitter register, stability of Q, that is operating or quiescent point, increases. We know that Q is basically equals to ICQ comma VCEQ. So how stability of Q increases due to the introduction of RE, that we will see later. But first we have to derive expression for IC and VCE here. So for that we will apply KVL in input and output loop. So let's start with application of KVL in input loop. So on applying KVL in input loop, we will get VCC minus IBRB minus VBE minus IERE is equals to 0. And we also know that IE is equals to IC plus IB, and IC is equals to मेरे पास में बीटा IB plus IB. So IE could be substituted by beta plus 1 IB. So I'm substituting IE from beta plus IB here. So we will get, so this equation will become VCC minus IBRB minus VBE minus beta plus 1 IB RE is equals to 0. So from here IB will be equals to VCC minus VBE divided by RB plus beta plus 1 RE, and IC will be equals to beta times IB. So this will be equals to beta times VCC minus VBE divided by RB plus beta plus 1 RE. Now we have to derive expression for VCE here. So for that we will apply KVL in output loop. So applying KVL in output loop, we will get VCC minus ICRC minus VCE minus IERE is equals to 0. Now we also know that IE is approximately equals to IC because बेस करंट जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू IC. सो IE could be approximated to IC. So here this expression, from this expression we will get VCE is equals to VCC माइनस IC कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे मेरे को मिलेगा RC प्लस RE. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर VCE. Now I will explain the advantage of introduction of or using RE in emitter bias configuration of BJT. तो हमें पता है कि जो Q पॉइंट है ना, Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट विल चेंज, है ना, Q विल चेंज ऑन चेंजिंग IC. एंड IC जो है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना. फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज बीटा. तो सबसे पहले अपन टेम्परेचर देखते हैं. तो हमें पता है कि अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमारे पास में जो IC की जो वैल्यू है दैट विल इंक्रीज, बिकॉज IC इज बेसिकली इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO, है ना.
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे पास में ICBO दैट इज़ लीकेज करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है एंड हैंस IC इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमें पता है कि IC इंक्रीज होता है, लेकिन ड्यू टू द बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ RE से हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो RE है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ RE है, इंट्रोडक्शन of RE will compensate the effect of temperature on IC। और ये होगा कैसे? देखो, अगर आप इस जो हमने केवीएल लगाया था इनपुट लूप में, उससे इस एक्सप्रेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि जो हमारे पास में IB है वो VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई माइनस IERE डिवाइडेड बाई RB के इक्वल आ रहा है। नाउ VCC VBE ये कांस्टेंट है, RB भी कांस्टेंट है। तो आप देखोगे तो कि ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RE हमारे पास में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है IERE, जिसके कारण हमारे पास में IB की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जा रही है फॉर दिस कन्फिग्रेशन। ओके, सो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ due to the introduction of RE हमारे पास में एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है दैट इज़ IERE, और इस ड्रॉप के कारण, है ना, इस ड्रॉप के कारण हमारे पास में IB की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जा रही है। एंड IB डिक्रीज होगा तो हमें समझ में आ रहा है कि IC भी डिक्रीज होगा, बिकॉज IC इज इक्वल्स टू मेरे पास में बीटा टाइम्स IB। सो यहाँ पे IC डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज के कारण जो इंक्रीज आता था हमारे पास में IC में, दैट इज़ बेसिकली बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक दैट विल बी कंपनसेटेड ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RE इन दिस सर्किट। ओके, एंड जो सेकंड फैक्टर होता है दैट जो कि चेंज कर सकता है IC को, दैट इज़ बीटा, है ना। तो हमें पता है कि IC इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स IB। ओके, एंड वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ IB जो हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं IC जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। और हमें यहाँ पे बीटा प्लस 1 जो होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो ये IC हमारे पास में बन जाएगा बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 बीटा RE। ओके, बीटा RE, एंड also beta times RE will be much greater than RB। okay, so beta RE plus RB को आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा टाइम्स RE लिख सकते हो। तो यहाँ से जो IC बनेगा वो बन जाएगा बीटा टाइम्स VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाई बीटा टाइम्स RE। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। तो IC, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RE हमारे पास में जो डिपेंडेंसी है बीटा की, जो डिपेंडेंसी है IC की बीटा पे, वो डिक्रीज हो जा रही है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RE। तो इस तरीके से जो दोनों फैक्टर्स हैं, है ना, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ RE है, जो दोनों फैक्टर्स हैं हमारे पास में जो IC को चेंज करते हैं, उन फैक्टर्स का वो फैक्टर्स अब बहुत ही लेस अफेक्ट कर पाएंगे IC को, जिसके कारण हमारे पास में जो स्टेबिलिटी है Q की, है ना, ऑपरेटिंग पॉइंट की, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन हियर। थैंक यू।